Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 21 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM705. Let's take a recap of what we studied in our last lecture. Students, our last lecture included following topics, and the first topic which we discussed was the views. Student, we discussed views in details, and we discussed that the default view which you see normally in your screen is a table on your left side and Gantt chart on your right side, and then there are certain built-in views which are available in the views sub-menu. So you may select any type of view from there. We also discussed that if you need some other sort of view and you don't find that view in the menu, you may click more views. In more views, you will be shown with the other views options, and you may select any of them. And we saw that when we selected calendar or when we selected some other views, how the screen changed. After that, the point of discussion was that can you create your own view? So for that we practiced, and we developed one of our own views in which we entered the view name, we selected the table, we selected the sorting and the filter for that specific view. Once we created our own view, we also saw that we have got an option to create a combined view. In the combined view we may select the view 1 and view 2. There could be two views included in the combined view, one at the upper half of the screen and one at the lower half of the screen. Students, views were discussed in detail. After that, the next topic was inserting sub-projects. Here we discussed that how we can create sub-projects, and we discussed an example that if we have a project of development or construction of huge building, we may divide it into three sub-projects, one of design, one of structure and one of finishing, and we may assign these sub-projects to three assistant project managers, and those project managers or project planners may develop their plans in Microsoft Project, and then we can include those as sub-projects in our main project. Whenever they will change the file in the sub-project, the change will be reflected on the main project. So one thing, this is another very good feature of Microsoft Project. The third thing which we discussed in detail was regarding recurring tasks. Students, here we discussed in detail that what is a recurring task, how recurring task is created, and we saw that if we have a task of weekly meeting or inspection, how we will create it. We saw that the main dialog box of the recurring task, and in main dialog box we discussed that first of all you will enter the name of the recurring task, then the duration of that recurring task, which could be 1 hour or 1 week or 1 month. After that, over the left side you may select the recurrence pattern. You may select that the recurring pattern is weekly, monthly or yearly or daily. So whenever you select any of these options, on the right side the relevant options for that specific selection are shown, and you may select that whether it is after 1 week, after 2 weeks, after every 3 weeks, or how. And then you select that after selection of that specific week, that on which day of that week the activity is going to occur. Then you will discuss about the day. You will select the day. You will select Monday or Tuesday or Wednesday, that on this specific day this activity is going to happen. After that, you have got an option that you can tell the Microsoft Project about when this recurrence pattern will start and when this will end. It may start at the start of the project by default and may end at end date of the project, but you have got an option that you may start on the specific date, and you may tell the Microsoft Project that please recur this task for like 20 times or 15 times or 10 times. So this is how the recurring task was discussed. After that, the splitting of task was one of the options, one of the things which was discussed, and we selected the option of split task. We clicked on the task, and the task was separated from the place where we clicked, and then we can drag it as much as we want, as much as gap we want to give
we can drag it up to that level. Once dragged, we may get that dead period in between the both parts of that task. If we want to merge that task, we can drag the right half of the task and take it close to the left half, and it will be merged with that specific task. After that, students, the thing which was discussed was adding notes against specific activity. We discussed that we can enter the relevant details to that specific task, and we can attach files to that task. We may attach files, and we may add notes to that specific task. That file could be a PDF, Word, Microsoft Word, even so you may add any sort of task, image, any sort of attachment to that specific task. Students, here we said that the planning part is over, and we discussed about tracking, that what is tracking. So let's see what is included in today's lecture. Students, our today's outline includes the baseline, that what is baseline. We will look at the formal definition of a baseline, and then set and save baseline. How you can set a baseline, how you can save a baseline, what would be the purpose of baseline, what would be a requirement of the baseline. So you can select these things over here. After that, update progress. After that, the point which we will discuss is update progress, that how you can update the progress of your project and why it is needed, what is the purpose of this feature. Then showing status lines, we may discuss this thing, and then tracking Gantt chart, that what is a tracking Gantt chart. Students, after that, a long awaited topic, that is reporting, will be discussed in detail, and here we will see that what sort of reports are available. We will try to discuss some sort of reports. Obviously we won't be able to discuss every report over here, but we will discuss few reports, and then you will be able to find reports which are specific to your requirements. So I think we should start today's topic and see what today's topic says. Students, tracking. What is tracking and what is necessary for the tracking? First of all, whenever you plan your project and you think that now this plan is ready to to be saved as a baseline, first of all, save 2 to 3 copies of that plan on your system and at some remote location as well. Copy it into some other drive, create a DVD of it and place at some distant location. Email that plan to yourself even. Place that plan into your Dropbox or whatever. But place your plan at some few different places, so that whenever you want to get back to this plan, you have options to revert to the original plan. One more thing which you must consider, must take care of, is the process of tracking starts from the approval from the customer. So what you will do is, you will in fact create your plan, you will finalize your plan, and then you will call your customer to your place, or either you will go to his place and you will discuss that plan on the multimedia. You will show him whole plan, that we will do this, after that this will be done, after that this will be done, this is the milestone, this is the date, this is the start date, this is finish date, etc., etc. These are the resources involved, this is the qualification of resources and everything. And if customer is not satisfied with that specific details or any specific part of your plan, what he will do, he will just ask you to change that thing. Now normally this will happen that 2 to 3 times the customer will ask for changes, and you will come back, you will improve your plan and then get back to the customer. Then he will find out some of the changes, then you will come back again, you will incorporate those changes, you will make your plan according to the wish of the customer, and ultimately what you have to do is you have to get signed this plan. You have to get signed this plan. आपने hard print लेना है इसका और उसको print करवाना है, और उस print पे आपने sign लेने हैं, उस print पे आपने sign signatures लेने हैं. So your customer must sign your final plan. Only then you can call this plan as final.
to which your customer has agreed. Same thing shown over here. After you complete your plan, send final copy of your plan to the client for approval, and then after getting approval, save 3 to 4 copies at different locations as backup. So these are two major points which you must take care of once moving from planning to tracking process. Okay students, coming up to the next slide, baseline. What is baseline? Let's discuss what is baseline. Now, if you remember that in our past lecture, we pointed few dots on the screen, and then we connected those dots with a path, and we said that this is our plan, this is our main plan, and then we saw how tracking was being conducted, and we saw that on some activities there was deviation from the plan, and we tried our best to incorporate, to keep our project on the track. One thing, to keep our project on the track, and second thing, to upgrade the plan of the future so that to meet the deadlines. We did two things. हमने दो चीज़ें की थी. एक हमने ये किया था कि जैसे ही हमने बेस लाइन को अपडेट किया, जैसे ही हमने अपना बेस लाइन क्रिएट किया, हमने कहा यार कि इससे डेविएशन नहीं होनी चाहिए. देन हमने एक चीज़ ये देखी कि डेविएशन ना हो. हमने कोशिश किया कि डेविएशन ना हो मैक्सिमम. और अगर डेविएशन हो जाती है, अगर आपके पास डेविएशन आ जाती है, तो देन क्या होगा कि देन उस डेविएशन को कंट्रोल कैसे करना है, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है फ्यूचर एक्टिविटीज पे, उसको कैसे कंट्रोल करना है. सो स्टूडेंट्स, बेस लाइन को अगर हम लोग जस्ट इनफॉर्मल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, ये देखिए, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना है. दिस इज योर प्लान कि हम यहां से आ जाएंगे. कस्टमर को आपने दिखाया, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, आपने कह दिया, जैसे ही कस्टमर अप्रूव किया, आपने कहा ओके. नाउ प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट ऐसे आया और ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ और ऐसे डेडलाइन पहुंच गया. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेविएशंस कहां हैं? यहां पे डेविएशन है, यहां पे डेविएशन है, यहां पे डेविएशन है, इन सब जगहों पे डेविएशंस है. दिस इज हाउ योर प्लान इज डेविएटिंग. ऐसे डेविएट कर रहा है प्लान, ऐसे डेविएट कर रहा है ना प्लान. सो ये डेविएशन कैसे आइडेंटिफाई हुई आपको? आपने कहा यार, मैं पूछूं कितनी डेविएशन है, आप कहते हैं यार यहाँ पे इतनी डेविएशन है, यहाँ पे इतनी डेविएशन है, यहाँ पे इतनी डेविएशन है, यहाँ पे. ये देखिए, आपने मेरी सारी डेविएशन बता दी. ये डेविएशंस आपको पता कैसे चली? आप कैसे इस काबिल हुए कि आप डेविएशंस को आइडेंटिफाई कर सके? आप इस लाइन की वजह से, जो आपकी जो मेन लाइन थी ये वाली, इस लाइन की वजह से आप इनेबल हुए कि आपको पता है कि डेविएशन कितनी है. आप इस लाइन को देखते हैं और आप देखते हैं कि कितना डिफरेंस है इस लाइन से. सो ये जो लाइन जिससे आप डिफरेंस देख रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन. आपका ओरिजिनल प्लान, ये आपका ओरिजिनल प्लान था, फिर आप देखते हैं कि आप कितना फर्क आया उस ओरिजिनल प्लान से. तो फर्क को मापने के लिए, फर्क को मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि कहां से फर्क आ रहा है. वो रेफरेंस पॉइंट आपकी बेसलाइन होती है. ठीक हो गया जी. जरा फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. एज योर प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है, ये देखिए प्रोजेक्ट आपका प्रोग्रेस कर रहा है. यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोग्रेस कर रहा है ना आपका प्रोजेक्ट. As your project progresses, some tasks might take longer or shorter than planned resources. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक कॉमा भी होना चाहिए. सो आप क्या कह रहे हैं कि जैसे ही
एज यू प्लान योर प्रोजेक्ट, एज योर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट चलना शुरू होता है तो ये मुमकिन है कि कुछ टास्क जो हैं वो ज़्यादा टाइम लें प्लान से और कुछ टास्क जो है वो कम टाइम लें प्लान से, ये ऐन मुमकिन है। सो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं उन पे ज़्यादा खर्चा आ जाए, उनका बजटेड कॉस्ट जितनी थी, जितने पैसे आपने रखे थे उससे ज़्यादा पैसे उन पे खर्च हो जाएं और कुछ पे कम खर्च हो जाए। देयर कुड बी डिफरेंस ना, एस्टिमेट से डिफरेंस हो सकता है, प्लान से डिविएशन हो सकता है। टू नो वेदर ऑल द एक्चुअल मीन यू आर अहेड ऑफ स्केड्यूल और बिहाइंड, ये जानने के लिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वजह से आप प्लान से कितने इधर उधर हैं, आप अपने स्केड्यूल से आगे हैं या पीछे हैं, ये जानने के लिए विद इन योर बजट और एक्सीडिंग इट, बजट आपका अभी आपकी लिमिट्स के अंदर है या आप जितना बजट रखा था उससे ऊपर जा रहे हैं, यू नीड टू बी एबल टू कंपेयर योर एक्चुअल स्केड्यूल टू सम रेफरेंस पॉइंट। आपको आपका जो एक्चुअल जो होता है स्केड्यूल उसको किसी रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और बेंचमार्क, यू कैन कॉल इट एज बेंचमार्क, इसको बेंचमार्क भी कह सकते हैं आप। सो रेफरेंस पॉइंट या बेंचमार्क जिससे आप कंपेयर करते हैं वो होना जरूरी है। हमारा यहाँ पे ये हमारा बेस लाइन था, देखिए ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ की थी, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली, ये क्या था, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था ना, इससे हम इस रेफरेंस लेके हम कंपेयर कर रहे थे कि हमारा डिवीजन कितना हुआ। सो हमने कहा कि ये रेफरेंस पॉइंट हमारा बेस लाइन है। दिस रेफरेंस पॉइंट इज द बेस लाइन। इस रेफरेंस पॉइंट को, ये जिससे आप कंपेयर करते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट को बेस लाइन कहते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को बेस लाइन कहा जाता है। आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ज़ेहनशीन भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है। बेस लाइन इज अ बेंचमार्क और रेफरेंस पॉइंट जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं कि जितना टाइम लगना चाहिए था उतना लग रहा है कि नहीं लग रहा, जितने पैसे खर्च होने चाहिए थे उतने खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नाउ ये बेस लाइन क्रिएट करने का तरीकाकार क्या होता है, बेस लाइन कैसे क्रिएट की जाएगी? स्टूडेंट, बेस लाइन क्रिएट करने का तरीकाकार ये है कि आप प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में जाके सेव बेस लाइन का आपको ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए सेव बेस लाइन। जैसे आप सेव बेस लाइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास सेट बेस लाइन का एक ऑप्शन आ जाता है। इस एरो को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दिस इज पॉइंटिंग टू द रॉन्ग लोकेशन। सो आपने सेट बेस लाइन को क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने सेट बेस लाइन को क्लिक किया, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट की बेस लाइन करना चाह रहे हैं, प्लान कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स अगर आप स्टूडेंट्स देखिए तो इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास पहला रेडियो बटन है कि आपने सेट बेस लाइन करनी है। हाँ जी, सेट बेस लाइन करनी है, आप उसको चेक कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में आप बताते हैं कि बेस लाइन का नाम क्या है। यहाँ पे बेस लाइन के नाम अगर आप देखेंगे इस डायलॉग बॉक्स में तो यहाँ होगा बेस लाइन, बेस लाइन 1, बेस लाइन 2, बेस लाइन 3, बेस लाइन 4 एंड बेस लाइन 11। काफ़ी सारी बेस लाइन इस वाले डायलॉग बॉक्स में आपके पास दी गई होंगी। जो आपका ये डायलॉग बॉक्स है इसमें बहुत सारी बेस लाइन्स दी गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, इसकी क्या रीज़न है, इसको हम ठीक 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। ज़रा इससे पहले हम लोग इसको देख लें कि बेस लाइन कैसे क्रिएट होगा। सेट बेस लाइन आपने किया, सेट बेस लाइन किसका करना है? आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे प्रोजेक्ट का कर सको या सेलेक्टेड टास्क का कर सको। सो आप कहते हैं यार कि मुझे पूरे प्लान का बेस लाइन सेट करना है। आपने यहाँ से पूरा प्लान सेलेक्ट किया, इंटायर प्रोजेक्ट, और आपने ओके दबा दिया। जैसे ही आप ओके दबाएंगे आपके पास बेस लाइन क्रिएट हो जाएगा।
आपका बेस लाइन क्या है, इट इज योर फ्रोजन प्लान, ठीक हो गया, आपका प्लान विल बी फ्रीज्ड, आपका प्लान फ्रीज हो जाएगा, आपका प्लान फ्रीज हो जाएगा। सो आपका जो प्लान है वो जो फ्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है कि अभी आपने जो प्लान बनाया इसकी एक कॉपी उसने अपने पास बैक एंड में सेव कर ली कहीं पे, ठीक हो गया ना। एक बात याद रखिए, प्रोजेक्ट की एक ही बेसलाइन होती है, हर प्रोजेक्ट की आपने एक बेसलाइन ही बनानी है, ठीक हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके साथ आप कंपेयर कर सकें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने एक ही बेसलाइन बनानी है ये वाली, तो फिर इन सब के होने का पर्पस क्या है, इन सब के होने का पर्पस क्या है, बताइए मुझे। इन सब के होने का पर्पस ये है कि आपने रखनी तो एक ही बेसलाइन है, लेकिन मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इफ देयर इज अ ह्यूज डेविएशन इन योर ओरिजिनल प्लान, if there is some huge deviation in your original plan, only then you create your new baseline. For example, एक प्रोजेक्ट हो रहा था, प्रोजेक्ट अपने प्लान 10 महीने का प्रोजेक्ट प्लान था, प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा था, छोटी मोटी डेविएशन 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में गवर्नमेंट को कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हॉल्ट कर दिया, 1 साल के लिए प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया। ना 1 साल बाद क्या आप बेस लाइन से कैलकुलेट कर सकेंगे? आप नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि बेस लाइन में डेट पड़ी हुई है साल पहले वाली, आप जो काम कर रहे हो साल बाद वाली है, कोई कंपैरिजन नहीं बनेगा, कंपैरिजन नहीं बनेगा, रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होगी। सो आप इसलिए जब कभी व्हेन देयर इज मेजर डेविएशन, ये याद रख लें, ये बात याद रख लीजिए, in case of major deviation in original plan, you may create new baseline। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बात याद रहे हमेशा, ठीक हो गया जी। सो आप बेसलाइन क्रिएट कर लेंगे, बेसलाइन क्रिएट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू अपडेट प्रोजेक्ट। देखिए अब क्या हुआ, आपने बेसलाइन सेव कर लिया, बेसलाइन सेव करने के बाद आपने कहा जी मेरा प्लान हो चुका है, बेसलाइन सेव हो चुका है। सपोज प्लान ने स्टार्ट होना था 1 अगस्त से, प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, आपने बेसलाइन सेव कर दिया, आपने कहा यार बेसलाइन सेव हो गया, 1 अगस्त आ गई, प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट चलने के 1 वीक के बाद प्रोजेक्ट बिल्डिंग बन रही है किसी थोड़ी रिमोट जगह पे, आपने कहा जी आज मैं जाके प्रोग्रेस देखूंगा, बल्कि मंडे को मैं जाऊंगा और मैं जाके प्रोग्रेस देखूंगा कि होना क्या था और हुआ क्या, ये चीज़ें देखूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या क्या देखना था, आप साइट पे जाके देखना चाहते हैं कि what was to be done versus what is done, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, 2 मेजर चीजें हैं। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए था, what was to be done। पहला क्वेश्चन तो ये है ना, what was to be done, कि होना क्या चाहिए था। ये गेट करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट करते हैं, ठीक हो गया। नाउ आप मंडे को जा रहे हैं, 1 अगस्त को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, सपोज कि आप मंडे को 8 तारीख बनती है, 8 अगस्त, आप 8 अगस्त को जा रहे हैं साइट पे और आपको 8 अगस्त तक का ये डाटा चाहिए कि व्हाट वाज टू बी डन, 8 अगस्त तक क्या हो गया होना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप इस डायलॉग बॉक्स पे आएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे टैब पे और अपडेट प्रोजेक्ट को क्लिक कर देंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अपडेट प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
आप कहेंगे कि अपडेट वर्क एज कंप्लीट थ्रू, आप उसको बता रहे हैं कि किस डेट तक का मुझे स्टेटस बता दो कि एज पर प्लान क्या होना चाहिए था। आगे आप उसको डेट बता देते हैं, ये डेट है आपकी स्टेटस डेट, इसे स्टेटस डेट कहते हैं। आपको याद होगा कि पहले दिन जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स में स्टेटस डेट का एक फील्ड आई थी और मैंने कहा था कि ये मैं आपको ट्रैकिंग में जाकर एक्सप्लेन करूंगा। सो ये आपकी स्टेटस डेट है। स्टेटस डेट इज द डेट ऑन विच यू वांट टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। जिस डेट पे आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करना चाह रहे हैं, उस डेट को क्या कहते हैं? स्टेटस डेट कहते हैं। ठीक हो गया? स्टेटस डेट के बाद आपके पास दो तरह की प्रोग्रेस होती हैं। एक प्रोग्रेस होती है 0%, 10%, 50%, 90%, 100%, कुछ भी हो सकती है कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी। कुछ लोग इस तरह ट्रैक करते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट इस तरह ट्रैक करते हैं, वो कहते हैं यार कि जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वो 0% होगी पहली स्टेट, और जैसे ही फिनिश होगी 100% हो जाएगी। बीच की कोई 50%, 30%, 40% नहीं है। आप कौन सा मैकेनिज्म यूज करना चाहते हैं? ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है पहले वाला, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। हमने टाइप 1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया? टाइप 1 के बाद वो कहता है कि पूरे प्रोजेक्ट या सिलेक्टेड टास्क। तो आप कहते हैं पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट अपडेट करो इस टास्क के ऊपर, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से टास्क इस डेट तक हो गए होने चाहिए थे, ताकि मैं आगे चलूं। आपने ये किया और ओके कर दिया। नाउ आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट होगी। नाउ स्टेटस डेट आपको पता चल गई। स्टेटस डेट की बात हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस भी हमने करके देख लिया। ग्रिड लाइंस की हमने बात की थी, याद होगा आपको। हमने कहा था कि आप फॉर्मेट में जाइए और फॉर्मेट में जाके ग्रिड लाइंस में जाइए और स्टेटस डेट को क्लिक कर दीजिए। स्टेटस डेट आप जैसे क्लिक करते हैं, ग्रिड लाइन में जाके आपके पास एक डायलॉग आता है, आपने वहां पे स्टेटस डेट सेलेक्ट कर ली, तो ये क्या करेगा कि ये स्टेटस डेट पे आके, जिस डेट पे आप स्टेटस प्रोग्रेस कर रहे हैं उस डेट पे एक लाइन ड्रॉ कर देगा उस कलर में जिस कलर में आपने कहा। तो हमने रेड ड्रॉ कराई, तो देखिए मैंने जिस डेट पे स्टेटस लिया उस डेट पे मेरी ये रेड लाइन ड्रॉ हुई है कि ये प्रोग्रेस होगी होनी चाहिए थी आज की डेट तक। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि क्या प्रोग्रेस होगी होनी चाहिए थी। और अगर आप गौर से देखिए तो आपको, मैं इसको थोड़ा जूम कर दिखा देता हूं आपको अब पहले आपको बार इस तरह नजर आ रही थी, ब्लू बार नजर आ रही थी। अब ब्लू बार के अंदर एक ब्लैक छोटी बार नजर आ रही है, इस तरह से कि प्रोग्रेस कितनी हो चुकी। अब असल में टास्क जो है वो ये 0% है, ये 100% है, और हो कितनी का 60%। ये जो अंदर की बार है आपको दिखा रही है। आप ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे ब्लैक कलर है, इस जगह ब्लैक कलर है, ये सारा ब्लैक है, ये एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, ये 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 सारी पूरी हो चुकी है। वो कह रहा है कि एज पर प्लान इस डेट को, जिस डेट पे आप जा रहे हैं साइट पे, ये तमाम एक्टिविटीज पूरी हो चुकी होनी चाहिए और ये जो एक्टिविटीज हैं इनका स्टेटस ये होना चाहिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे चल लेते हैं। नाउ आप क्या करेंगे कि आप अपने गैंट चार्ट का व्यू चेंज कर लेंगे ट्रैकिंग गैंट चार्ट में। पहले हम लोग नॉर्मल गैंट चार्ट देख रहे थे, अब हम ट्रैकिंग गैंट चार्ट देखेंगे। सो आप उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, गैंट चार्ट को क्लिक करेंगे और ट्रैकिंग गैंट चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। व्यू में जाएंगे, गैंट चार्ट सेलेक्ट करेंगे और ट्रैकिंग गैंट चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सो क्या होगा कि अब आपके पास जो गैंट चार्ट नजर आएगा वो गैंट चार्ट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम
व्हाट वी वर ऑब्जर्विंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। इस गैंट चार्ट आप देखें तो इस गैंट चार्ट में देखिए, अगर आप समरी बार देखें तो समरी बार के नीचे वाइट डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी आपको, ये इस जगह पे तक देखिए, ये आपको यहाँ तक नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नज़र आ रही है। सो क्या हुआ कि आपकी इस समरी बार की ये जो आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है, यहाँ तक ये डॉटेड लाइन, आपका प्रोजेक्ट इतना हो चुका है। अब जो ट्रैकिंग गैंट चार्ट है दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में से जो ये नीचे वाला जो मॉड्यूल है इनिशिएशन का, इनिशिएशन की जो समरी टास्क है वो कह रही है कि ये इनिशिएशन फेज पूरा हो चुका है, इनिशिएशन फेज इज ऑल कंप्लीट, ऑल डन। और आप देखिए कि इनिशिएशन फेज की सारी बार जो हैं दे आर इन ब्लू। क्यों? कि जब वो काम हो चुके अब वो क्रिटिकल नहीं रहे, जो काम हो चुका होता है वो क्रिटिकल नहीं रहता। नाउ दिस टास्क इज नो मोर क्रिटिकल, ये टास्क अब क्रिटिकल नहीं है। सो क्या हुआ कि आपने कहा यार मेरा ये टास्क अब क्रिटिकल नहीं है। सो आपने क्या किया कि आपने इनको ब्लू कर दिया, और ये देखिए कि हर समरी बार अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है, 100% हो चुका। लेकिन इस समरी बार देखें आप इस वाले को यहाँ आके, तो आपका पता लग रहा है आपको कि ये टास्क अभी 60% हुआ, और इसके अंदर एक टास्क है, देखिए तो इसकी रेड लाइन भी अंदर से आपको डार्क नजर आ रही होगी, यहाँ तक डार्क है और आगे लाइट है। मीन्स ये इस तरह से रेड लाइन नजर आ रही है, आधी डार्क आधी लाइट। डार्क का मतलब है कि इतना हो चुका, और लाइट का मतलब है कि लाइट वाला पार्ट रहता है। सो ट्रैकिंग गैंट चार्ट इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और आपको आपके प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी तरीके से देती है अगर आप इसमें डाटा प्रॉपरली इंसर्ट कर रहे हो, ओनली देन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस तरह गाड़ी में हमने बताया था कि आपके पास गेजेस लगी हुई हैं, गैजेट्स लगी हुई हैं जो कि आपको गाड़ी की कंडीशन बताती हैं, इसी तरह प्रोजेक्ट में भी यू नीड सम गैजेट्स, सम गेजेस जो कि आपको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन बताती चली जाए। सो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार ओके फाइन, मैं ये करता हूं कि मुझे पहली जो गेज चाहिए वो है परसेंटेज कंप्लीट अ कॉलम। जो पहली गेज आपको चाहिए वो चाहिए परसेंटेज कंप्लीट अ कॉलम, एक कॉलम जो कि दिखा रहा हो परसेंटेज कंप्लीट। सो आप क्या करते हैं, एक कॉलम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट के नाम से। ये देखिए ये कॉलम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है परसेंटेज कंप्लीट का। जैसे ही आपने परसेंटेज कंप्लीट लिखना शुरू किया उसने आपको यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट दिखा दिया। आपने परसेंटेज कंप्लीट सेलेक्ट किया, परसेंटेज कंप्लीट सेलेक्ट करके आपने इसको ये कॉलम में इंसर्ट कर दिया। नाउ यू गो टू साइट एंड आस्क साइट इंचार्ज फॉर द एक्चुअल प्रोग्रेस। आपने बेसलाइन क्रिएट किया, बेसलाइन क्रिएट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट की स्टेटस डेट पर अपडेट किया, और स्टेटस डेट वाले दिन आप चले गए साइट पे। अब यहाँ पे इस कॉलम में कुछ प्रोग्रेस ऑलरेडी आ रही होगी जो आपने परसेंट कंप्लीट वाला किया है, वो दिखा रहा होगा कि आइडियली क्या होना चाहिए। ठीक हो गया? अब साइट पे चले गए। साइट पे जाने से पहले आप एक काम और कर लीजिए कि आप एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश के कॉलम इंसर्ट कर लीजिए। देखिए पहले आपके पास था स्टार्ट और फिनिश, स्टार्ट और फिनिश। स्टार्ट का मतलब क्या है, प्लान्ड स्टार्ट कि प्लान एज पर प्लान कब स्टार्ट होना है, और प्लान्ड फिनिश। ठीक हो गया? ये और ये। अब आ गया एक्चुअल स्टार्ट कि असल में कब स्टार्ट हुआ, ओरिजिनली कब स्टार्ट हुआ, एंड एक्चुअल फिनिश कि एक्चुअली कब फिनिश हुआ, एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ और एक्चुअली कब फिनिश हुआ। देखिए आपने कह दिया कि एक टास्क को 2 तारीख स्टार्ट होना चाहिए और 5 तारीख खत्म होना चाहिए। लाजमी तो नहीं है ऐसा हो, बंदा छुट्टी पे चला गया, मटेरियल नहीं मिला, बारिश होना शुरू हो गई, आउटडोर एक्टिविटी थी, कुछ किसी की वजह से एक्टिविटी 4 को स्टार्ट हुई और 9 को खत्म हुई जाके, तो ये भी आपको डेट्स डालनी पड़ सकती हैं। सो आप 2 कॉलम्स इंसर्ट कर लीजिए, एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश का। यूज एक्चुअल स्टार्ट एंड एक्चुअल फिनिश एज पर ओरिजिनल प्रोग्रेस।
अब आप क्या करेंगे, एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल फिनिश में आप जो असल में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जब स्टार्ट होगी असली स्टार्ट डेट जो है वो डाल देंगे, और जब एक्टिविटी खत्म होगी तो वहां जाके उसकी जो असल में खत्म होने वाली डेट है वो डाल देंगे। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक्चुअल स्टार्ट डेट डाल दें, आप कह रहे हैं ये स्टार्ट इस डेट को हो गई, एंड देन उसकी जो एक्चुअल प्रोग्रेस है कि कितने % ये काम हो चुका, वो काम आप परसेंटेज कंप्लीट में डाल दें आगे। लेट्स सी अपकमिंग स्लाइड, थोड़ा सा ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट ये स्लाइड देखिए, तो इस पर कुछ लिखा हुआ बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को एलेबरेट करता हूँ। ये देखिए, मैंने ये स्क्रीन शो कर दिया आपको कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो गैजेट्स मैंने क्रिएट की वो क्या की। आप ज़रा ये कॉलम देखिए, पहला कॉलम है % कंप्लीट का, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ साथ ताकि आपको % कंप्लीट का पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है स्टार्ट का, तीसरा कॉलम है एक्चुअल स्टार्ट का, चौथा कॉलम है बेस लाइन स्टार्ट का, और इसी तरह से फिनिश, एक्चुअल फिनिश और बेस लाइन फिनिश के भी 3 कॉलम्स हैं। तो आपने ये सारे कॉलम्स इंसर्ट कर लेने हैं, आपने ये सारे कॉलम इंसर्ट कर लेने हैं। ये देखिए, ये आपको यहां दिखा रहा है 100%, 100%, ये देखिए यहां दिखा रहा है 65%, इस जगह पे आपको 65% दिखा रहा है। आप साइड पे गए, एक्टिविटी 65% होनी चाहिए थी, आपने देखा यार 65% नहीं हुई है, तो 20% हुई है। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसको लिख दें, इसको चेंज कर दें टू 20%। आप इसको यहाँ पे इस जगह पे चेंज कर दें 20%, 20% पे आप इसको चेंज कर दें कि यार 20% जो है एक्टिविटी यहाँ पे होगी। सो आप अपने, पहले उसने आपको बताया कि एज पर प्लान ये होना चाहिए, फिर आपने उसको बताया कि असल में ये हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल फिनिश में आप बता सकते हैं कि कब असल में स्टार्ट हुई, कब असल में फिनिश हुई। स्टूडेंट्स, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखने की स्पेस नहीं मिल रही। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ एक्सप्लेन कर, इससे पिछली स्लाइड की 3 चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक उसने बताया, अच्छा थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिए। मैंने प्लान बनाया, इनिशियली मेरी एक्टिविटी ने यहाँ से स्टार्ट होना था, यहाँ पे ख़त्म होना था, और नेक्स्ट एक्टिविटी जो उस पर डिपेंडेंट थी उसने यहाँ से स्टार्ट होना था और यहाँ पे ख़त्म हो जाना था। ये फर्स्ट को शुरू हुई, 5 को ख़त्म हुई, और ये 6 को शुरू हुई और 10 को ख़त्म हो गई। ये था हमारा प्लान, ये इसकी, जिसको हमने बेसलाइन क्रिएट किया। इस प्लान को हमने बेसलाइन क्रिएट कर लिया। सो जब हमने बेसलाइन क्रिएट किया, हमने कहा जब हमने इस बेसलाइन क्रिएट किया तो ये हमारा बेसिकली बेसलाइन स्टार्ट और बेसलाइन फिनिश हो गया इस एक्टिविटी का। इसी तरह ये इस एक्टिविटी का बेसलाइन स्टार्ट और बेसलाइन फिनिश हो गया, कि क्योंकि हमने बेसलाइन बनाई। नाउ दिस विल नेवर चेंज, ये डेट्स चेंज नहीं होंगी। अब आप देखिए क्या हुआ, ये एक्टिविटी 1 को शुरू तो हुई, लेकिन 5 के बजाय 6 को खत्म हुई जाके 1 दिन बाद। तो ये एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी जाके? 7 को, 7 को स्टार्ट होगी ना, जब वो 6 को खत्म होगी ना। आप देखिए कि इस एक्टिविटी का बेसलाइन स्टार्ट क्या है, बेसलाइन स्टार्ट तो 6 ही है। तो मैं कहता हूं कि बेसलाइन स्टार्ट इस एक्टिविटी का बेसलाइन स्टार्ट जो है आपका BL स्टार्ट, वो तो 6 है जो ऑलरेडी यहां पे गिवन है आपके पास, ठीक है। लेकिन जो उसका स्टार्ट है, प्लान स्टार्ट है वो 7 हो चुका है। क्यों? क्योंकि पिछली एक्टिविटी लेट खत्म हुई, तो अब उसका स्टार्ट 7 हो चुका। और एक्चुअली ये कब शुरू हुई? 1 दिन मजीद डिले शुरू हुई, हो सकता है शुरू होनी थी यहाँ पे, शुरू हुई यहाँ पे जाके। तो आपने कहा कि इसका एक्चुअल स्टार्ट जो है वो आ गया, एक्चुअल स्टार्ट आ गया 8th। सो 3 तरह की स्टार्ट और फिनिश डेट्स हैं। एक है बेसलाइन स्टार्ट, जो कि आपको ये बताती है कि आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट असल में कब होना था, आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट कब था। एक है आपकी फिनिश, कि आपका प्रोजेक्ट का फिनिश कब था,
ठीक है। इसे आप कहते हैं यार कि चेंजेस के बाद क्या स्टार्ट डेट क्या बन गई, वो आपका प्लान स्टार्ट आ गया, और एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ, एक्चुअल स्टार्ट आ गया। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आ गई कि आपने लेजेंड कैसे ख़त्म करना है, और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक लेक्चर में कि हमने लेजेंड कैसे ख़त्म करना है। हमने कहा कि अगर हम जिसको हम लेजेंड में शो नहीं करना चाहते उसके साथ आप इस जगह पे पहले स्टैरिक लगा देंगे। सो आप देख, ये चीज़ आपको थोड़ी सी इंसर्ट, ये लेजेंड होता है, देखिए नीचे इतना बड़ा लेजेंड आ रहा है, आपका पेज सारा ज़ाया हो गया। सो अगर आप चाहें यार कि आपकी जो ये वाली बार है ये लेजेंड में नज़र ना आए, तो आप बार स्टाइल में जाके इस बार के नाम से पहले स्टैरिक लगा दें, तो ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। दिस इज़ अ टिप, ये आपको एक टिप मैंने पहले दे चुका हूँ, मैंने रिपीट कर दी यहाँ पे ये टिप। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टैरिक लगा दिया, जैसे ही स्टैरिक लगाया तो ये चीज़ अब यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। अनदर बेसलाइन कब क्रिएट की जाती है, ये चीज़ अभी हम लोग देख चुके कि इसके क्रिएट करने का पर्पस क्या है, और हमने यहाँ पे ये बात की थी कि व्हेन देयर इज सम मेजर डेविएशन, ये देखिए अवॉइड क्रिएटिंग मल्टीपल बेसलाइंस, मल्टीपल बेसलाइन क्रिएट करना अवॉइड करें। मगर इफ देयर इज सम मेजर deviation in plan, then you can only may create new baseline। मैंने आप लोगों को लिख दिया है so that कि ये चीज़ आपके माइंड में रहे, because this is something very important, this is something very important। okay स्टूडेंट्स, ट्रैकिंग को हमने थोड़ा देख लिया, ट्रैकिंग का ही पार्ट है रिपोर्ट्स। मैं आपको ये बताऊं कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने का जो सबसे बड़ा पर्पज़ है वो ये है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो कस्टमर है, वो फैसिलिटेटेड रहे, उसको प्रोजेक्ट की ट्रू पिक्चर मिलती रहे, उसको प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंट पिक्चर मिलती रहे, सो दैट कि वो उसके अगेंस्ट रेमेडियल एक्शंस ले सके और वो उसके अगेंस्ट बाकी चीज़ों को प्लान कर सके। सो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग with which your management will be concerned and for which they will be looking for is reports. So reports is one of very important thing. Report किसे कहते हैं आप? Report वो डाटा जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको आपका सॉफ्टवेयर देता है, और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और ये आप कस्टमर को भेज सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट को भेज सकते हैं, स्पॉन्सर को भेज सकते हैं। So, किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर आपने स्ट्रेंथ देखनी हो तो आप उसकी रिपोर्टिंग देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये कितना हैवी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना वर्दी है। वर्दी इज़ द राइट वर्ड इन फैक्ट। सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स अस। लेट्स सी एंड देन rather we may practice the things which we have studied up till now। हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन हम रिपोर्ट्स देखते हैं। ओके हम सो दैट कि हमारा ट्रैकिंग का जो पार्ट है वो एक हद तक हो चुका हो। स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट प्लान। अब मेरे प्रोजेक्ट प्लान में जो स्टेप्स हमने पढ़े थे, लेट्स सी कि वो स्टेप्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, हमने कहा था सबसे पहले कि हमें बेस लाइन क्रिएट कर लेना चाहिए। सो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट में आए और सेट बेसलाइन को क्लिक कर दिया। तो ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल बेसलाइन का ऑप्शन है। जब आप पहला बेसलाइन दूसरा बेसलाइन बनाने आएंगे तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, तीसरा बेसलाइन बनाने आएंगे तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, चौथा बेसलाइन बनाने आएंगे तो ये सिलेक्ट करेंगे। मगर याद रहे कि बेसलाइंस मल्टीपल क्रिएट करना अवॉइड करना है हतल वसा। ठीक है, आपने यहाँ पे बेसलाइन सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा यार ये बेसलाइन है मेरा, और बेसलाइन किसका है? इंटायर प्रोजेक्ट का है, पूरे प्रोजेक्ट का बेसलाइन है। ठीक है, ये करके आपने ओके कर दिया। ये देखिए
इसने आपके प्रोजेक्ट की आज की डेट में जो प्लान बना हुआ है इसकी एक कॉपी रेफरेंस पॉइंट के तौर पर अपने पास रख ली, बेंचमार्क के तौर पर अपने पास रख ली। इस बेंचमार्क से या इस रेफरेंस से वो थ्रू आउट आपकी ट्रैकिंग को कंपेयर करेगा और आपको रिजल्ट्स बताएगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। आफ्टर दैट हमने बात की कि आप अपडेट प्रोग्रेस कर दीजिए। ने कहा जी हम अपडेट प्रोग्रेस कर देते हैं। तो अपडेट प्रोग्रेस हम किस डेट पे कर देते हैं? चलिए हम कहते हैं कि हम लोग सपोजिटली हम लोग 28 अगस्त पे इसको अपडेट कर लेते हैं। सेट 0% 100% मैंने कहा था, इसको आप फर्स्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे, सेकंड भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर फर्स्ट ऑप्शन। देन इंटायर प्रोजेक्ट की डेट सेलेक्ट करनी है। आपने कहा ओके, ये देखिए मैंने ओके कर दिया। मैंने ओके किया, मेरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट हो गई। अगर आप इस वक्त देख सकते हो तो मेरी जो लाइंस हैं उनके बीच में एक डार्क लाइन आ चुकी है, ठीक है। तीसरा स्टेप जो हमने देखा था, जो हमने इसके बाद कहा था कि अपडेट हम प्रोग्रेस जब कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग ट्रैकिंग गैंट चार्ट के व्यू में जाएंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, व्यू में जाके गैंट चार्ट में ट्रैकिंग गैंट चार्ट आ रहा है मेरे पास। सो मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए कि मेरा व्यू ऑल टुगेदर क्या हुआ, चेंज हो गया। मेरा व्यू ऑल टुगेदर चेंज हो गया। सो मैं इसको जूम करके इंटायर प्रोजेक्ट कर लेता हूं ताकि मुझे पूरा प्रोजेक्ट नजर आता रहे। ये देखिए अब मेरा प्रोजेक्ट किस तरीके से नजर आ रहा है। मेरा गैंट चार्ट मुझे साथ दिखा रहा है कि 100% ये काम हो चुका। किस डेट पे, मैंने जिस डेट पे स्टेटस दिया था उस डेट पे 100%। स्टेटस डेट कौन सी है, इसकी लाइन भी ड्रॉप करके देख लेते हैं। हम लोग गए फॉर्मेट में, ग्रिड लाइंस में हमने कहा था ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइन में हमने स्टेटस डेट को सेलेक्ट करना था। ये देखिए स्टेटस डेट, और इसका कलर हम दे देते हैं, टाइप इसकी कॉन्टिन्यूस दे देते हैं, कलर इसका रेड दे देते हैं, ठीक है जी। और ओके कर दे। ये देखिए रेड लाइन में ड्रॉप हो गई। ये वो डेट है जिस डेट को मैं साइट पे जाना चाहता हूं, और मैंने सिस्टम से कहा कि इस डेट तक एज पर प्लान क्या क्या हो गया होना चाहिए, what would have been done on this date। सो मुझे सिस्टम ने बताया कि ये तमाम काम 100% हो चुके होंगे, ठीक है, और ये काम 20% हुआ होगा। ये काम जो है कितने पर, सारा उसने मुझे स्टेटस दिखा दिया, कंप्लीट स्टेटस उसने मुझे दिखा दिया इस डेट का। सो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट अब देखिए कि पूरा नजर आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे ये कहा था कि हम लोग कुछ कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और वो कॉलम क्या है, एक हमने कहा था इस कॉलम को मैं हाइड कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए भी फुल वक्त, ठीक हो गया। ये देखिए हमने कहा कि हम परसेंट कंप्लीट का कॉलम इंसर्ट करते हैं, परसेंट कंप्लीट। ये देखिए कॉलम आ गया मेरे पास, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे देखिए बता रहा है कि कितने कितने परसेंट ये काम हो गया होना चाहिए उस डेट पे। मैं जाऊंगा, मुझसे पूछूंगा कि यार ये काम 20% होना चाहिए, कितना हुआ है? वो कहेंगे यार ये काम तो अभी इतने परसेंट नहीं हुआ। जो जितना वो बताएंगे उतने परसेंट मैं यहाँ पे कर दूंगा चेंज। सिमिलरली मैंने कहा था आपको बेस लाइन स्टार्ट, एक कॉलम इंसर्ट करें और यहाँ लिखें बेस लाइन स्पेस एस स्टार्ट। ये देखिए बेस लाइन स्टार्ट आ गया। ये मेरी बेस लाइन स्टार्ट डेट है। एक्चुअल स्टार्ट डेट मेरे पास ये आ रही है। मैं एक्चुअल स्टार्ट भी इंसर्ट कर सकता हूं, इंसर्ट कॉलम एक्चुअल स्टार्ट। ये देखिए आ रही है मेरे पास ये डेट, एक्चुअल स्टार्ट भी। अब मेरे पास बेसलाइन स्टार्ट भी है, प्लान स्टार्ट भी है, और एक्चुअल स्टार्ट भी है। बेसलाइन स्टार्ट क्या है, जो फ्रोजन प्लान है उसके हिसाब से स्टार्ट डेट क्या होगी इस टास्क की। स्टार्ट डेट क्या है कि जो प्लान अपडेट होकर जो नया प्लान बन रहा है उस प्लान में स्टार्ट डेट क्या है, और एक्चुअल स्टार्ट डेट की असल में स्टार्ट डेट क्या हुई। सो आई कैन एंटर ऑल दीज थिंग्स। मैं जाऊं साइट से पूछूं जो एक्चुअल बात है यहाँ पे आके एंटर कर दूं, मेरे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस अपडेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो आपको अलाउ कर रहा है।
नाउ लेट्स कम बैक टू द रिपोर्ट्स। हम लोग रिपोर्ट्स को देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स किस किस तरह की ऑप्शंस आपको अलाउ करती हैं और क्या क्या आपके पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, दीज आर 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्टिंग की 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं और इन 6 ब्रॉड कैटेगरीज को अगर आप देखिए तो आपके पास ओवरव्यू है। ये देखिए आपके पास ओवरव्यू है, ये आपको तमाम की तमाम ओवरव्यू की रिपोर्ट्स दिखाएगा कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड समरीज, स्टैट्स, जो जनरल रिपोर्ट्स हैं जो कि मैनेजमेंट को ज़्यादातर रिक्वायर्ड होती हैं। करंट एक्टिविटीज़, ये आपको एक्टिविटीज़ के हिसाब से रिपोर्ट दिखाएगा। ये ग्रुप आपको सारी कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स के ऑप्शंस देगा। ये ग्रुप आपको असाइनमेंट्स के हिसाब से ऑप्शंस देगा। ये ग्रुप आपको वर्क लोड के हिसाब से ऑप्शंस देगा और ये ग्रुप आपको कस्टम रिपोर्ट्स बनाने का ऑप्शन देगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने आपके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स बना दी हैं जो कि तकरीबन आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर जाएंगी। इन केस कोई ऐसी अगर ऑप्शन है जो कि मौजूद नहीं है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी की कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स भी बना लीजिए। सो ये 6 ब्रॉड ग्रुप्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं और जिनकी रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हर ग्रुप में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। देखिए ओवरव्यू में मेरे पास कौन सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ओवरव्यू में मेरे पास प्रोजेक्ट की समरी रिपोर्ट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, बॉस आपके पास आता है और आपको आगे कहता है यार कि मुझे फौरन से प्रोजेक्ट की समरी दिखा दो, कि तो आप क्या करेंगे। अगर आप कोई नॉर्मल तरीका यूज़ कर रहे हो, कागज़ पेंसिल यूज़ कर रहे हो, चार्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो कितनी देर लगेगी आपको रिपोर्ट बनाने में। लेकिन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपने जस्ट क्लिक करना है और आपके पास रिपोर्ट खुल जाएगी। सिमिलरली अगर आप टॉप लेवल टास्क देखना चाहें तो आपके पास ये रिपोर्ट मौजूद है कि आप कहें मुझे टॉप लेवल टास्क दिखा दो। एंड देन अगर आप क्रिटिकल टास्क देखना चाहें तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल टास्क हैं, ये तमाम टास्क हैं जो कि क्रिटिकल हैं। अभी आप देखिए, आप बहुत से पूछ ले यार कि जल्दी करो मुझे वो टास्क दिखा दो कि जिनको हम डिले नहीं कर सकते, या वो टास्क दिखा दो जिन पे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं सर क्रिटिकल टास्क जो क्रिटिकल पाथ पे हैं, एक दिन डिले किया पूरा प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस हैं। कहते हैं अच्छा दिखाओ मुझे लिस्ट। आप फौरन से आते हैं, क्रिटिकल टास्क पे क्लिक करते हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं और जाके बॉस को दिखा देते हैं। जस्ट अज्यूम कि आपके लिए कितनी ज़िंदगी आसान होगी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की वजह से। एंड देन बॉस कॉल करता है, आपको कहता है यार कि मुझे ना टॉप मेजर माइलस्टोन्स दिखा दो हमारे प्रोजेक्ट के हैं, मैंने CEO के साथ डिस्कस करना है या कंट्री हेड के साथ डिस्कस करना है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ओके। आप यहाँ आते हैं, माइलस्टोन्स को क्लिक करते हैं और एक रिपोर्ट में प्रिंट आ जाता है। आप जाके बॉस को देते हैं, बॉस साथ ले जाता है, कहता है हाँ यार परफेक्ट, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। दिस इज ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, दिस इज ब्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग, दिस इज ब्यूटी ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज ब्यूटी विच यू आर लुकिंग फॉर। ब्रिलियंट थिंग। आपने कैलेंडर बनाया, आपने वर्किंग डेज रखे यार कि मेरा सैटरडे संडे ऑफ है, फलां दिन का इतना टाइमिंग है, फलां दिन का इतना टाइमिंग है। आप नया बंदे ने ज्वाइन किया, आप उसे वर्किंग डेज दिखाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के, आप कैसे दिखाएंगे? प्लान खोल लेंगे पूरा? नहीं, यहाँ आएंगे, वर्किंग डेज पे क्लिक करेंगे, प्रिंट करके उसको दे देंगे। नोटिस बोर्ड पे लगाना है, नोटिस बोर्ड दे देंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स को देना है, उनको दे देंगे कि यार लोग इस टाइम पे आएंगे, ये हमारे वर्किंग टाइम्स हो करेंगे इस प्रोजेक्ट के। देखिए कितना बेनिफिट है इस चीज़ का। और ये तो सिर्फ समरी रिपोर्ट्स। आगे देखिए, आपके पास करंट एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स आ गई। करंट एक्टिविटी की रिपोर्ट में आपका बॉस आपको कहता है यार कि मुझे वो रिपोर्ट्स दिखा दें जो कि ऐसे टास्क जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, जो स्टार्ट होने हैं, जो हो चुके उनको भूल जाओ, जो नहीं हुए वो स्टार्ट दिखा दो। आप आते हैं एक्टिविटी रिपोर्टिंग में और इस रिपोर्ट को प्रिंट करके उसको दे देते हैं, कहते हैं यार ये लो, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट आप ले लें। सिमिलरली आप क्या करते हैं, आपका बॉस ने आपसे कहा कि यार मुझे वो टास्क दिखा दो जो कि अगले 2 हफ्ते में स्टार्ट हो रहे हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं एक बार चाहता हूँ रिव्यू कर लूँ
कि जब मैं जिस दौरान मैं अब्रॉड होऊंगा उस दौरान कौन से टास्क होने हैं और उसमें मेरी कोई ज़रूरत है अगर, तो मैं अभी से देख लूँ। आप आते हैं इस टास्क पे, इस रिपोर्ट पे, इस रिपोर्ट पे आते हैं, टास्क स्टार्टिंग सून, वो आपसे पूछता है कि किस जगह, किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट। आप कहते हैं यार इस डेट से इस डेट तक की रिपोर्ट दिखा दो, वो आपको उस डेट से उस डेट तक की रिपोर्ट दिखा देता है। आप रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, बॉस को देते हैं, बॉस आपका हैप्पी कि यार मेरा लड़का तो मिनट्स में रिपोर्ट निकाल के ले आता है। टास्क इन प्रोग्रेस, वो कहता है यार कि आजकल क्या क्या चल रहा है, आपसे वो पूछ ले कि क्या क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में, आप कहते हैं यार ये चल रहा है, जस्ट इन क्लिक आप ये रिपोर्ट निकाल लेते हैं। एंड देन बॉस पूछता है यार जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं ना उनकी लिस्ट दे दो, ताकि जिन लोगों ने उन टास्क पे काम किया मैं उनका इंक्रीमेंट लगा दूं इस दफा। कहते हैं ओके जी, ये ले, ये रिपोर्ट है। फिर आपसे उससे कहते हैं यार कि शुड हैव स्टार्टेड टास्क या स्लिपिंग टास्क। कहते हैं यार कि ऐसे टास्क जिनकी स्टार्ट डेट आती है लेकिन फिर वो स्लिप कर जाते हैं, फिर वो स्लिप कर जाते हैं। आपके पास इन दोनों चीज़ों के लिए ये दो रिपोर्ट्स हैं, आप उसको ये दिखा देते हैं, ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स। इसी तरह से कॉस्ट की रिपोर्ट्स, कैश फ्लो की पूरी रिपोर्ट। स्टूडेंट्स ये रिपोर्ट बनाने में लोगों के महीने लग जाते हैं, 3 साल के प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट निकालने में लोगों के महीने लग जाते हैं, बट आप ये रिपोर्ट बिल्कुल प्रॉपरली निकाल सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लान करें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, और वो तमाम काम जो कि हमने आपको बताए हैं वो आप करें, आप ये तमाम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। बजट बनाना आसान काम होता है, फाइनेंस के लोग आप बताइए, बजट बनाना आसान काम है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपको बजट बना के दे देता है और ये आपको तमाम बजट जो है आपके सामने है, आप इसके साथ जो मर्जी करें, एक क्लिक में पूरा बजट आपके सामने। ओवर बजटेड टास्क, ऐसे टास्क जिन पे जितने पैसे आपने रखे थे उससे ज्यादा खर्च हो चुके हैं, अगर वो चाहिए तो आपको यहां से मिल जाएंगे। ओवर बजटेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिन पे जितने पैसे खर्च होने चाहिए थे उससे ज्यादा खर्च हो चुके हैं, वो रिसोर्स मुझे 100 रुपए देने थे, 200 खर्च हो चुके हैं, वो आपको लिस्ट रिपोर्ट में दिखा देगा। एंड देन अर्नड वैल्यू की रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ अर्नड वैल्यू, कि आपका प्रोजेक्ट, कि आपका अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसके इवज बेनिफिट क्या ले रहे हैं, कंप्लीट रिपोर्ट बता देगा कि आप क्या बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सीपीआई, एसपीआई वैल्यूज, जो कि यहाँ पे आपको दे देगा और आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, असाइनमेंट रिपोर्ट्स, हु डज व्हाट, कौन क्या करेगा, कौन बंदा क्या क्या काम करेगा, पूरी रिपोर्ट। हु डज व्हाट व्हेन, कौन कब क्या क्या करेगा, टाइम भी साथ, ये रिपोर्ट आपको सब कुछ दे देगी। एंड देन देखिए टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाना आसान काम होता है। आप कहते हैं यार वसीम इरशाद को उसकी टू डू लिस्ट का प्रिंट निकालें और दे दें, इसको पता हो कि इसने किस डेट पे क्या काम करना है। यहाँ पे आए, क्लिक करें, हर बंदे की टू डू लिस्ट निकालें, उसके हाथ में दे दें, यार ये ले, आपने काम करने हैं, अल्लाह हाफिज। सोचिए जरा, कितनी मजेदार बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये इंटरेस्टिंग बात आपको कौन अलाउ करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। एंड देन ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज की रिपोर्ट जो कि ओवर बर्डन है या ओवर एलोकेटेड है, वो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और वो रिसोर्स, वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ ब्रिलियंट रिपोर्ट्स। स्टूडेंट्स, वर्कलोड की रिपोर्ट्स आ गई कि आप कहते हैं यार कि टास्क के हिसाब से वर्कलोड दिखा दो या रिसोर्स के हिसाब से वर्कलोड दिखा दो, कि कौन बंदा प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम कर रहा है, किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहा है, या किस एक्टिविटी पे कौन कौन काम कर रहा है और कितने कितने घंटे कर रहा है। ये रिपोर्ट्स आपको देनी है, पेजेस ऑफ पेजेस प्रिंट निकाल के दे देगा आपको। आराम से दिखाएं, मैनेजमेंट को दिखाएं, कस्टमर को भेजें, उससे फीडबैक लें। अल्टीमेट रिपोर्ट्स, अल्टीमेट रिपोर्ट्स। एंड देन कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स, आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स बना सकते हैं
जैसी रिपोर्ट्स आप बनाना चाहें वो रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से बाकी से कस्टमाइज बनाते हैं। आप कस्टम में जाते हैं, कहता है यार किस तरह की रिपोर्ट, कुछ और रिपोर्ट्स उसने आपको यहाँ पे दे दी कि यार इनमें से कोई है जो चाहिए, आप कहते हैं नहीं, कहते हैं नहीं, ओके आप यहाँ पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, आपके पास उसी तरह से स्क्रीन आ जाती है कि किससे रिलेटेड रिपोर्ट है एंड कैसी रिपोर्ट है। नाउ दिस इज समथिंग मोर टेक्निकल, बट आप यहाँ से आके आप बता सकते हैं कि रिपोर्ट का नाम क्या होगा, रिपोर्ट कितने ड्यूरेशन की होगी, टेबल कैसा होगा, फिल्टर क्या लगेगा, डिटेल्स क्या है इसकी, सॉर्ट एवरीथिंग यू कैन क्रिएट योर रिपोर्ट्स। बट आई मस्ट टेल यू कि नॉर्मली आपको रिपोर्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वट एवर इंफॉर्मेशन वी नीड इन जनरल ऑन आवर प्रोजेक्ट्स वो यहाँ बनी होती हैं। फिर भी अगर वो करना पड़े तो इट इज़ वेरी ईजी। स्टूडेंट्स ये देखिए डिटेल्स में आप बता सकते हैं यार कि आपने रिसोर्स की क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, असाइनमेंट की क्या चीज़ें ऐड करनी है, और फिर सॉर्टिंग बता सकते हैं कि सॉर्टिंग किस किस हिसाब से डाटा की होनी चाहिए। दिस इज कंप्लीट आर्टिस्टिक सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड देन कम्स द विजुअल रिपोर्ट्स, देन आ जाते हैं ग्राफिकल रिपोर्ट्स जो है आपकी, कि यार ग्राफ्स बने हुए हों, उस तरह से रिपोर्ट दिखाएं, प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं प्रेजेंटेशन में, बॉसेज आर नॉर्मली इंटरेस्टेड। तो आपके पास विजुअल रिपोर्ट्स देखिए, ऑल विजुअल रिपोर्ट्स आ गई, टास्क यूजेज की आ गई, रिसोर्स यूजेज आ गई, असाइनमेंट यूजेज आ गई, समरी की आ गई, रिसोर्स समरी, सारी विजुअल रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पड़ी हुई हैं। आप जिस रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे वो आपको इस तरह के ग्राफ्स बना के दिखा देगा। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आके व्यू को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप व्यू सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए रिपोर्ट क्रिएट कर देगा। ये देखिए एक सैम्पल रिपोर्ट आपके सामने बनी हुई है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में किस जगह पे हैं, एंड देन हम चीज़ को समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, और आप देखिए कि मेरे पास प्रोजेक्ट में विजुअल रिपोर्ट्स और नॉर्मल रिपोर्ट्स, जैसे मैं रिपोर्ट क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई। अगर मैं ओवरव्यू में जाके प्रोजेक्ट समरी रिपोर्ट निकालना चाहूँ तो ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई, साथ प्रिंटर आ गया, साथ रिपोर्ट आ गई। ये मैं जूम करके देखूँ, ये देखिए मुझे क्या क्या दिखा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने है, जस्ट मैंने प्रिंट देना है और चीज़ सामने आ जाएगी। इस तरह से आप जिस मर्जी रिपोर्ट को क्लिक करते जाएंगे वो रिपोर्ट आपके सामने खुलती चली जाएगी। ठीक हो गया जी, वो रिपोर्ट आपके सामने खुलती चली जाएगी। इसी तरह से अगर आप जाना चाहें विजुअल रिपोर्ट्स पे तो आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये रिपोर्ट्स आ गई। आप कैश फ्लो को क्लिक कर दें, आपके लिए ये रिपोर्ट खुद जनरेट करेगा, आपको ये रिपोर्ट जनरेट करके देगा। आई होप कि मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कंपैटिबल हो। अगर इसके साथ वर्जन का ख्याल रखना है आपने कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ का वर्जन अगर हो ऑफिस का और एक्सेल का तो आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने मैं एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ और नीचे मुझे प्रोग्रेस बार नज़र आ रही है। ये प्रोग्रेस बार देखिए मेरे लिए रिपोर्ट जनरेट कर रही है ओपनिंग एक्सेल। ये देखिए मुझे कैश फ्लो का कंप्लीट रिपोर्ट दे दी इसने। अगर मैं इसको क्वार्टर को डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास इस कंप्लीट एस कर्व जनरेट हो गया, कंप्लीट ग्राफिकल रिपोर्ट जनरेट हो गई। और इस ग्राफिकल रिपोर्ट का ये देखिए एक्सेल में सारी कैलकुलेशन दे दी उसने मुझे। जब मैं यहाँ आया मेरे पास पूरी रिपोर्ट मौजूद है कि मेरी किस वीक में कितना जो है वो एक्सपेंस आ रहा है। ये देखिए, और एस कर्व देखा आपने कैसे बन रहा है, एस कर्व कम्युलेटिव दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंस है हर वीक का वो यहाँ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से, किस ब्यूटीफुल तरीके से मेरी प्रोजेक्ट ने मुझे रिपोर्ट जनरेटर दिखा दिया। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। हमने जितना आज देखना था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग देखा, हमने प्रोजेक्ट ट्रैकिंग देखा। आज के दिन में हमने देखा कि हम बेसलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने बेसलाइन क्रिएट करके देखी, हमने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट की, हमने वो इन्फॉर्मेशन निकाली जो हमने साइट पे जाके चेक करनी है। हमने तमाम इंपॉर्टेंट कॉलम्स बताया आपको जो आपने ऐड करने हैं, और उन कॉलम्स को देखते हुए आपने जो अपना प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट सेट करना है वो आपको सिखाया। स्टूडेंट्स हमने रिपोर्ट्स देखी हर तरह की, हमने उन रिपोर्ट्स की जनरल फंक्शनैलिटी डिस्कस की और हमने वो रिपोर्ट्स जनरेट करके देखी। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्राइमावेरा एंड आई मस्ट टेल यू, जो कुछ आपने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको करके देखिए, ये रिपोर्ट जनरेट करके देखिए। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे काम करना, और व्हेन यू विल गो टू मार्केट
और आपके रिज्यूमे में लिखा होगा कि आपको इस सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हैं आप, तो इंशाल्लाह दिस विल ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। हम लोग इस पूरे सॉफ्टवेयर का एक रिव्यू लेंगे अपने लास्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।